بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام رئیس احمد ہے۔ میں آپ کا دوہم جماعت ریاضی کا استاد ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے چوتھا یونٹ شروع کرنا ہے جس کا نام ہے جزوی کسریں۔ ہم پڑھیں گے اس میں کہ کس طرح سے اگر ہمیں کسر دی گئی ہو اس کو چھوٹی چھوٹی کسور کے اندر توڑ کے ہم نے کیا کرنا ہے، جزوی کسور کے اندر تحلیل کرنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی جانب۔ آج ہم نے پڑھنا ہے چوتھا یونٹ، اور چوتھا یونٹ جس کا نام ہے جزوی کسریں، یا جسے انگلش کے اندر ہم پارشل فریکشنز کہتے ہیں۔ تو پارشل فریکشنز پڑھنے سے پہلے کچھ اہم چیزیں ہم سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، جس طرح کے الجبری جملے، اس کے بعد کثیر رقمی کسر کسے کہتے ہیں، اور الجبری جملہ کون سا ہوتا ہے، اس کے بعد ناطق جملہ، ناطق جملے کے بعد واجب ناطق جملہ اور غیر واجب ناطق جملہ۔ اس کے بعد ہم مماثلت کی تعریف بھی کرنا سیکھیں گے کہ مماثلت کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الجبری جملے کی تعریف۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الجبری جملے۔ الجبری جملے اس کی تعریف ہے مستقل مقداروں یا متغیرات یا دونوں کو بنیادی عمل کے ذریعے ملانے سے الجبری جملہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس دو مستقل مقداریں ہوں، مثال کے طور پر یہاں پہ ہم نے دو مستقل مقداریں 3 اور 5، ان کو آپس میں ملایا جمع کے عمل سے، اور یہ ہمارے پاس اب ہمارے پاس یہ ایک الجبری جملہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک متغیر مقدار x کی 2 تھی، پھر اب یہاں پہ x کی 2 اگر ہے تو ہم نے x کو 2 دفعہ x سے ضرب کیا، جمع 3x، x کی 2 اور 3x ان دونوں کو آپس میں ہم نے ملایا، تو یہ ہمیں ایک اور الجبری جملہ ملا۔ اس کے بعد ہے 1/x نفی 5۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی دیے گئے ہیں الجبری جملے ہیں۔ الجبری جملے ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس مستقل مقداریں یا متغیرات یا دونوں کو اگر ہم کسی بھی بنیادی عمل سے آپس میں ملائیں تو الجبری جملہ بنتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ہم ذہن میں رکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی الجبری جملہ ہے تو اس کا قوت نما مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کسر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ اگر کچھ ہم ایسے لکھتے ہیں x کی نفی 3 جمع 6، تو یہ بھی ایک الجبری جملہ ہے۔ مطلب الجبری جملے میں کسی بھی متغیر یا کسی بھی عدد کا قوت نما نفی میں بھی ہو سکتا ہے اور کسری حالت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کثیر رقمی کی بات کریں گے تو کثیر رقمی میں قوت نما صرف اور صرف مثبت ہوگا۔ آئیے اب ہم تعریف کرتے ہیں کثیر رقمی جملہ۔ اس کی پہلی تعریف ہے ایسا جملہ جو کئی رقموں پر مشتمل ہو، کثیر رقمی جملہ کہلاتا ہے۔ یا دوسری تعریف جو اکثر استعمال کی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک الجبری جملہ p of x برابر ہے an x کی n جمع a n نفی 1 x کی n نفی 1 جمع a n نفی 2 x کی n نفی 2 جمع اسی ترتیب سے جمع کرتے جائیں گے ہم، پھر جمع a1 x کی 1 جمع a0 x 0۔ یہاں پہ n جو ہر ایک کا قوت نما رہا ہے، قوت نما یہاں پہ مثبت صحیح عدد ہوگا، اور اس کے بعد x جتنے بھی x آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے متغیر، اور an نفی 1 an نفی 2 a0 تک یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، عددی سر ہوں گے، تو اسے ہم کیا کہیں گے، کثیر رقمی کہیں گے۔ آئیے اس سے متعلق مثال دیکھتے ہیں۔ مثال ہمیں یہاں پہ لکھی ہے x کی 2 جمع 6x جمع 9۔ اب یہاں پہ 3 رقمیں آپس میں جمع ہو رہی ہیں، یہ مستقل رقم، یہ یک درجی اور یہ 2 درجی۔ اب مزید ہم دیکھیں گے کہ درجہ کسے ہم کہتے ہیں، تو 3 رقمیں آپس میں جمع ہو رہی ہیں تو اسے ہم کثیر رقمی کہیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ہر رقم کا جو درجہ ہے، قوت نما ہے، وہ مثبت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں x، اس کا قوت نما مثبت، x یہاں پہ جو 2 یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اس x کا جو قوت نما ہے کوئی نہیں لکھا ہوا تو ہم 1 لکھ سکتے ہیں، یہ بھی مثبت ہے۔ اور یہاں پہ x نہیں ہے، ہم یہاں پہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں x کا قوت نما 0 جو کہ 1 کے برابر ہوگا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی قوت نما ہیں وہ سارے کے سارے مثبت صحیح اعداد ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی کثیر رقمی کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ بچہ اگر ہمیں کوئی کثیر رقمی دی گئی ہو،
मिसाल के तौर पर x की 2 जमा 6x नफी 12, इस कसीर रकमी में हर रकम का दर्जा देखेंगे। सबसे हर रकम में जो सबसे बड़ा कुव्वतनुमा होगा वो उस कसीर रकमी का दर्जा शुमार होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस कसीर रकमी का जो दर्जा है वो 2 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं 3x जमा 4, इस रकम का दर्जा अगर हम कुव्वतनुमा देखें तो 1 मुस्तकिल रकम है, दर्जा 0 के बराबर होता है। दोनों में सबसे ज्यादा दर्जा यकदर्जी रकम का आ रहा है, तो यहाँ पे जो दर्जा होगा इस कसीर रकमी का वो दर्जा 1 के बराबर होगा। हाँ जी, इस कसीर रकमी का बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 3 है, तो इसका जो दर्जा होगा वो 3 के बराबर होगा। आइए अब हम तारीफ करते हैं कसर की। कसर किसे कहते हैं? दो आदात या अलजबरी जुमलों की निस्बत को कसर कहते हैं। अगर हमारे पास दो आदाद हैं या दो अलजबरी जुमले हैं, अगर उनके दरमियान निस्बत हो, उस निस्बत को कसरी हालत के अगर हम अंदर लिखें तो इसे हम क्या कहते हैं? निस्बत को बार की अलामत से हम जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर दो आदाद के दरमियान निस्बत हो तो हम इस अलामत से जाहिर करते हैं, ये बार की अलामत से। अब हमने मिसाल लिखी x की 2 जमा 2 बटा x नफी 2। अब यहाँ पे हमने लिखा कि x नफी 2 0 के बराबर नहीं होगा, कि अगर ये 0 के बराबर हो तो इसमें जो नस्ब नुमा है मतलब मखरज वो 0 हो जाएगा और हमें इसका कोई जवाब नहीं हासिल होगा। आइए अब हम नातिक कसर की तारीफ करते हैं। नातिक कसर n ऑफ x बटा d ऑफ x का जुमला नातिक कसर कहलाता है। कैसा जुमला? जो n ऑफ x बटा d ऑफ x की शक्ल में हो। n ऑफ x भी यहाँ पे एक कसीर रकमी है और d ऑफ x भी यहाँ पे एक कसीर रकमी है, जबकि n ऑफ x और d ऑफ x मुतगय्यर x में हकीकी अददी सुरुम के साथ कसीर रकमियां हों। हमारे पास n ऑफ x, इसमें मुतगय्यर x आ रहा है और इसमें भी मुतगय्यर x है, तो दोनों मुतगय्यर x के साथ और इनके अददी सर हकीकी हों तो ये कसीर रकमियां होंगी। और इस जुमले के अंदर यहाँ पे एक चीज जो हम लाजमी तौर पर ध्यान देंगे जिसका वो ये है कि इस जुमले में जो नीचे वाली कसीर रकमी है ये वाली, ये 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब d ऑफ x 0 के बराबर ना हो। ये क्यों? क्योंकि अगर नस्ब नुमा या मखरज 0 के बराबर होगा तो हमें जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। तो आइए हम इसकी मिसाल देखते हैं। अब अगर हम इसकी मिसाल देखें, मिसाल के अंदर x की 2 जमा 3, ऊपर वाली कसीर रकमी, ऊपर हमें एक कसीर रकमी दी गई है और नीचे हमने क्या किया है? ऊपर एक कसीर रकमी के ऊपर नीचे एक कसीर रकमी को तकसीम किया तो हमें एक नातिक कसर मिली। यहाँ पे भी हमने ऐसे किया 2x बटा x नफी 1 बटा x जमा 2। हम अपनी तरफ से कोई भी इस तरह से नातिक कसर लिख सकते हैं कि जिसमें हम किसी एक कसीर रकमी को दूसरी कसीर रकमी के ऊपर तकसीम करेंगे। अब हम तारीफ करते हैं वाजिब कसर। वाजिब कसर किसे कहते हैं? अगर किसी नातिक कसर n ऑफ x बटा d ऑफ x में n ऑफ x और d ऑफ x मुतगय्यर x में कसीर रकमियां हों। हमारे पास n ऑफ x और d ऑफ x अगर ये दोनों कसीर रकमियां हों और कोई नातिक जुमला या नातिक कसर हो और कसीर रकमी ऊपर वाली अगर कसीर रकमी n ऑफ x का दर्जा कसीर रकमी d ऑफ x से कम हो, मतलब जो शुमार कुनिंदा के अंदर कसीर रकमियां हमें दी गई है ये कसीर रकमी, इसका दर्जा अगर कम हो नीचे नस्ब नुमा या मखरज के अंदर कसीर रकमी से, और ये शर्त भी लाजमी है कि नीचे वाली कसीर रकमी 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी कसर वाजिब कसर कहलाती है। मिसाल के तौर पर 2 बटा x जमा x, ऊपर अगर हम देखें शुमार कुनिंदा के अंदर मुतगय्यर मिकदार नहीं है तो ऊपर इसका दर्जा 0 होगा, नीचे दर्जा आ रहा है 1, ऊपर दर्जा कम है नीचे दर्जा ज्यादा है, तो ये वाजिब कसर है। दूसरी मिसाल देखें 2x नफी 3 बटा x की 2 जमा 4, ऊपर अगर हम देखें शुमार कुनिंदा के अंदर दर्जा 1, मखरज में या नस्ब नुमा में जो इसका दर्जा है वो 2 आ रहा है, ऊपर दर्जा कम नीचे ज्यादा, तो ये वाजिब कसर। उसके बाद 3x की 2 बटा x की 3 जमा 1, ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास शुमार कुनिंदा में दर्जा कम और नीचे ज्यादा है मखरज के अंदर, तो ये भी
वाजिब कसर हुई। आइए अब हम तारीफ करते हैं गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर, अगर किसी नातिक कसर n ऑफ x बटा d ऑफ x में कसीर रकमी n ऑफ x का दर्जा कसीर रकमी d ऑफ x के दर्जे के बराबर हो या ज्यादा हो तो ऐसी कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर इस कसीर रकमी n ऑफ x इसका दर्जा बराबर हो या ज्यादा हो d ऑफ x कसीर रकमी के दर्जा से, तो हम क्या कहेंगे, ऐसी नातिक कसर को हम गैर वाजिब नातिक कसर कहेंगे। और यहाँ पे भी हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली नस्ब नुमा कसीर रकमी d ऑफ x है ये सिफर के बराबर नहीं होनी चाहिए। मिसाल हमने यहाँ पे लिखी, मिसाल है 5x बटा x जमा 2। ऊपर अगर हम देखें, ऊपर वाली कसीर रकमी इसका दर्जा 1 आ रहा है, नीचे भी दर्जा 1 है, ऊपर और नीचे दर्जा बराबर है, तो ये गैर वाजिब कसर। उसके बाद अगर हम देखें ये दूसरी मिसाल 6x की 4 बटा x की 3 जमा 1। ऊपर दर्जा यहाँ पे 4 और नीचे दर्जा 3 आ रहा है, ऊपर दर्जा ज्यादा नीचे कम है, तो ये जो नातिक कसर उसमें गैर वाजिब कसर की मिसाल है। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई गैर वाजिब कसर दी गई है और किस तरह से हम उसे वाजिब कसर के अंदर तब्दील करेंगे। किसी भी गैर वाजिब कसर को तकसीम के अमल के जरिए एक कसीर रकमी और एक वाजिब कसर के मजमूए की शक्ल में लिखा जा सकता है कि अगर हमारे पास कोई भी गैर वाजिब कसर दी गई है, हम क्या करेंगे, मखरज को या नस्ब को शुमार कुनिंदा के ऊपर तकसीम करेंगे। तकसीम करने के बाद हमें एक कसीर रकमी मिलेगी और कोई ना कोई हमें हासिल होगा, तो वाजिब कसर और कसीर रकमी के मजमूए में हम उसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुमार कुनिंदा का दर्जा नस्ब नुमा के दर्जा से बड़ा हो या बराबर हो, मतलब अगर हमारे पास कोई गैर वाजिब हो, गैर वाजिब में हमने पढ़ा है या तो शुमार कुनिंदा का दर्जा बड़ा होगा या बराबर होगा नस्ब के दर्जा के, तो हम n ऑफ x को d ऑफ x से तकसीम करके, तो हम शुमार कुनिंदा को मखरज से तकसीम करके हासिल किस्मत जिसे हम q ऑफ x कसीर रकमी कहेंगे और एक बाकी कसीर रकमी r ऑफ x हासिल कर सकते हैं। जबकि r ऑफ x मतलब जो बाकी होगा, बाकी कसीर रकमी होगी का दर्जा d ऑफ x के दर्जा से कम होता है। मतलब जिस पे हम तकसीम कर रहे हैं हमने तब तक तकसीम करते रहना है जब तक जो बाकी हमारे पास कसीर रकमी आ जाए, और जिस पे हम तकसीम कर रहे हैं जिस कसीर रकमी के ऊपर बाकी वाली कसीर रकमी का दर्जा तकसीम होने वाली कसीर रकमी से कम ना हो जाए। तो हम उस नातिक गैर वाजिब नातिक कसर को कुछ इस तरह से तकसीम करने के बाद हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, q ऑफ x वो जो कसीर रकमी हमारे पास आएगी हासिल किस्मत में, जमा r ऑफ x बटा d ऑफ x। अब यहाँ पे r ऑफ x बटा d ऑफ x एक वाजिब कसर है और q ऑफ x एक हासिल किस्मत कसीर रकमी, और यहाँ पे भी हमने ये कहा कि d ऑफ x ये सिफर के बराबर नहीं होगा। मजीद हमने यहाँ पे लिखा है q ऑफ x जो है हासिल किस्मत कसीर रकमी है और r ऑफ x बटा d ऑफ x ये वाजिब कसर है। आइए इसे मुतालिक मिसाल हम लिखते हैं और उसे ये देखते हैं किस तरह से तकसीम के अमल से हम क्या कर सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं। किसी गैर वाजिब को वाजिब में तब्दील करना है, अगर किसी गैर वाजिब को वाजिब में तब्दील करना हो तो किस तरह से तकसीम के अमल से हम उसे वाजिब में तब्दील करेंगे। इससे मुतालिक मिसाल देखें तो x की 2 जमा 1 बटा x जमा 1 ये एक गैर वाजिब कसर हमें दी गई है। हम क्या करते हैं, तकसीम के अमल से इसे वाजिब में तब्दील करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा इसका अगर हम दर्जा देखें तो इसका दर्जा 2 आ रहा है, मखरज या नस्ब नुमा का दर्जा यहाँ पे 1 आ रहा है। हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा के ऊपर मखरज को तकसीम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 जमा 1, इस पे तकसीम कर देंगे हम x जमा 1 को। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि x को किस से अगर हम ज़रब करें कि जवाब x की 2 आए, उसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि x की 2 इसका अददी सर क्या है। जी बिल्कुल, जिस पे हम तकसीम कर रहे हैं उसका अददी सर 1 है और जो तकसीम हो रहा है उसका अददी सर भी 1 है, तो वाज़ेह तौर पर दोनों के अददी सर 1 जैसे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमें x को x की 2 बनाना है अगर, तो हमें किस से ज़रब करना होगा,
जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। हम x से ज़रब करेंगे, x को x से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा x की 2। उसके बाद जमा जमा जमा, x को 1 से ज़रब करेंगे जवाब x होगा, क्योंकि ऊपर कोई x वाली रकम नहीं है तो मैं अलग लिख लेता हूं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसकी अलामतें तब्दील करेंगे। अलामतें तब्दील करें तो ऊपर इसकी अलामत जमा है, अब नफी होगी, और यहां पे बाद में इसकी अलामत नफी होगी। ये कट जाएगा x की 2 से। x की अलामत अब बाद वाली नफी है तो हम यहां पे लिख लेते हैं नफी x, उसके बाद जमा 1। अब हम यहां पे देखते हैं पहला अदद, उसके साथ जो अलामत आ रही है वो क्या है, नफी। अब ये अलामत ऊपर हम तब लिखेंगे कि अगर जो हम तकसीम कर रहे हैं जिस कसीर रकमी के ऊपर, उसका दर्जा और जो बाकी है इसका दर्जा या तो बराबर आ रहा हो या इसका दर्जा ज्यादा आ रहा हो बाकी का दर्जा। जिस पे हम तकसीम कर रहे हैं कसीर रकमी, उसका दर्जा 1 है, बाकी का दर्जा भी 1 ही आ रहा है। हमने तब तक तकसीम करना है जब तक बाकी का दर्जा तकसीम कुनिंदा से कम ना हो। तो अब हम तकसीम करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम मजीद तकसीम कर सकते हैं। तो पहले अदद की जो अलामत है वो हम ऊपर लिख लेंगे, नफी अलामत ऊपर लिख ली हमने। अब x को अगर हमने नफी x बनाना हो तो अदद अगर मिसाल के तौर पर 5 है, इसे 5 ही हमने बनाना हो तो इसे 1 से ज़रब करते हैं तो जवाब 5 आता है। तो x को अगर हमने x ही बनाना है तो हम यहाँ पे 1 से ज़रब कर देंगे। x को अगर हम नफी 1 से ज़रब करें जवाब होगा नफी x। उसके बाद नफी जमा नफी, 1 को 1 से ज़रब करेंगे जवाब 1 के बराबर होगा। अलामतें तब्दील करें तो यहाँ पे जमा अलामत और यहाँ पे भी जमा अलामत, ये कट जाएगा। ऊपर वाले एक की अलामत भी जमा, नीचे वाले एक की अलामत भी जमा है तो दोनों को जमा करें, जवाब 2 के बराबर होगा। भाई हमने अभी पढ़ा है कि इसे लिखने का तरीका क्या है। इस रकम को, ये जो ऊपर वाली रकम है इसे हम कहते हैं हासिल किस्मत। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, हम यहां पे लिखेंगे x की 2 जमा 1 बटा x जमा 1, ये बराबर है। सबसे पहले ऊपर हासिल किस्मत लिखेंगे तो हम यहां पे लिख लेंगे x नफी 1, उसके बाद जमा अलामत, ऊपर हम यहां पे लिखेंगे बाकी ये आ रहा है तो बाकी किसके बराबर है, 2 के, बटा जिस कसीर रकमी के ऊपर तकसीम किया था वो कसीर रकमी ये थी तो वो हम यहाँ पे नीचे तकसीम कर देंगे। तो ये इसका जवाब है x की 2 जमा 1 बटा x जमा 1 बराबर है x नफी 1 जमा 2 बटा x जमा 1। आइए इससे मुताल्लिक या इससे मिलती जुलती मिसाल नंबर 1 उसे हम हल करते हैं। आइए अब हम हल करते हैं मिसाल नंबर 1। मिसाल नंबर 1 में कहा गया x की 3 नफी x की 2 जमा x जमा 1 बटा x की 2 जमा 5 को वाजिब कसर में तब्दील करें। पेपर के लिहाज से ये अहम है काफी। आइए अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली कसीर रकमी शुमार कुनिंदा, नीचे वाली मखरज है। वाज़े तौर पर लिखा गया है कि वाजिब कसर में तब्दील करें, इसका मतलब ये गैर वाजिब है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये वाकई गैर वाजिब में है। ऊपर वाली कसीर रकमी का दर्जा 3 आ रहा है, नीचे वाली कसीर रकमी का दर्जा 2 है। जी बिल्कुल, ये गैर वाजिब है। अगर ऊपर वाली कसीर रकमी का दर्जा ज्यादा हो या बराबर हो नीचे वाली कसीर रकमी के दर्जा के तो ये गैर वाजिब कसर होगी। तो आइए अब हम तकसीम करते हैं। ऊपर वाली कसीर रकमी हम यहां पे लिखते हैं जो कि है x की 3 नफी x की 2 जमा x और जमा 1। इसके ऊपर हम तकसीम करने जा रहे हैं x की 2 जमा 5 को। अगर हम इस पे तकसीम करें, वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पे पहली रकम x की 2 है जिस पे तकसीम कर रहे हैं वो x की 3। इसका मतलब ये है x की 2 को x की 3 बनाने के लिए x से ज़रब करें तो जवाब x की 3 के बराबर होगा। तो हम x की 2 को x की 3 बनाने के लिए x से ज़रब करें, जवाब होगा x की 3। उसके बाद जमा जमा जमा, 5 को x से ज़रब करेंगे 5x, तो उसके जैसी जो एक जैसी रकम है उसके नीचे लिख देते हैं हम। अलामतें तब्दील करें, यहाँ पे जमा अलामत है, तब्दील करके नफी होगी और यहाँ पे भी नफी,
یہ رقم کٹ جائے گی. اس کے بعد ہم ترتیب سے لکھیں گے. پہلی رقم x کی 2 آئے گی, اس کے ساتھ علامت نفی ہے تو نفی x کی 2. پھر 5x اور 1x دونوں کے اگر ہم یہاں پہ علامات دیکھیں تو دونوں کے علامات مختلف ہیں. تو 5x میں سے 1x نکالیں تو جواب ہوگا 4x. بڑی رقم نفی میں ہے تو جواب نفی 4x ہوگا اور جمع 1. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جو رقم تقسیم ہو رہی ہے کثیر رقمی, اس کا درجہ اور باقی کا درجہ دونوں کا برابر ہے. تو اس کا مطلب مزید ہم تقسیم کریں گے تو پہلا عدد جو بھی ہے اس کی علامت کو ہم اوپر لکھ لیں گے نفی علامت. x کی 2 کو x کی 2 ہی ہم نے بنانا ہے تو ہم 1 سے ضرب کر دیتے ہیں. 1 سے ضرب کریں تو جواب ہوگا نفی x کی 2, اس کے بعد جمع نفی نفی 5. پھر علامات تبدیل کریں, یہاں پہ علامت جمع ہوگی اور یہاں پہ بھی علامت جمع, یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گی. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں باقی جو رقمیں بچ رہی ہیں وہ کون سی ہیں. باقی رقم ہے پہلی نفی 4x. 1 اور 5 دونوں کی علامات ایک جیسی ہیں تو دونوں کو جمع کریں گے, جواب یہاں پہ آئے گا جمع 6. تو آئیے اب ہم اسے لکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم حاصل قسمت جو کہ یہ ہے وہ لکھتے ہیں. حاصل قسمت ہم یہاں پہ لکھیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ جو کثیر رقمی ہمیں دی گئی ہے x کی 3 نفی x کی 2 جمع x جمع 1 بٹا x کی 2 جمع 5, یہ برابر ہوگا. سب سے پہلے ہم کثیر حاصل قسمت لکھیں گے جو کہ x نفی 1 آ رہا ہے. اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں باقی آ رہا ہے یہ, تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جمع باقی ہے نفی 4x جمع 6 بٹا آخر میں ہم لکھتے ہیں تقسیم ہونے والی رقم یہ ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے بٹا x کی 2 جمع 5. تو یہ ہم نے کیا کیا ہے, غیر واجب کسر کو واجب کسر کے اندر تبدیل کیا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے چوتھا یونٹ شروع کیا اور اس میں کثیر رقمی کی تعریف کی. کثیر رقمی کا درجہ کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہم نے کسر کی تعریف کی. کسر کے بعد نعت کسر, واجب کسر اور غیر واجب کسر کی تعریف کی, اور ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے کوئی کسر واجب اور غیر واجب ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے مثال نمبر 1 کو حل کیا. امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں.